نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے پنجاب حکومت کے لاک ڈاؤن کے نفاذ سے قبل ہی ضلع انتظامیہ نے کمر کس لی شادی ہالز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ڈی سی لاہور نے اسسٹنٹ کمشنرز کو حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کروانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ شہر کے 9 زونز میں 1361 شادی ہالز میں شادیوں کی تقاریب متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے اسسٹنٹ کمشنرز کو NCOC کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ شہر میں 380 سنگل سٹوری، 251 ڈبل سٹوری، 480 ٹرپل سٹوری شادی ہالز پابندی کی زد میں آئیں گے۔ شہر میں لان پر مشتمل 250 اوپن ایریاز ہیں۔ شادی ہالز مالکان کو بھاری جرمانے اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شام 6 بجے مارکیٹس اور بازار بند کرنے کا فیصلہ مسترد۔ تاجروں نے نئی پابندیوں کو معاشی قتل کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ تاجر تنظیموں نے ہفتے کو ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ شہروں نے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ کیسز کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر پنجاب حکومت نے شام 6 بجے مارکیٹیں اور بازار بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر تاجر برادری پر بجلی بند کر گری۔ تاجر برادری کی اکثریت نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ کورونا کے باعث نئی پابندیوں کا اطلاق۔ تاجر تنظیمیں حکومتی فیصلے پر سیکھ پا۔ شام 6 بجے بازار اور مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بٹی نے کہا کہ تاجر اجرت میں کیے گئے فیصلے کو نہیں مانتے۔ آپ ایسے کریں کہ کم از کم 10 بجے کا ٹائم دے، 10 بجے رات تک کاروبار ہم کر سکیں تاکہ اس میں گزارا بھی ہوتا رہے اور ان کا بھی لاک شیڈنگ وغیرہ سے بچ جائیں ہم۔ لیکن اگر یہ کہ زبردستی کریں گے تو ہم اسے نہیں مانیں گے، کسی قیمت پہ نہیں مانیں گے۔ انارکلی بازار، اردو بازار، منٹگمری مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ سمیت درجنوں مارکیٹوں کے تاجروں نے فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہمارے آگے کاروبار کے بیڑے گرک ہوئے ہیں، اب مسا پرانے والے ہمارے کھاتے ختم ہوئے، اب نیا پھر انہوں نے کام شروع کر دیا، تو یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مشاورت کریں گے، ٹائمنگ کریں گے، ہماری انجمن تاجران جو پاکستان میں جو اور تاجران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے، فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ وہ ساتھ ڈیسیجن ہوگا ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم گن پوائنٹ کریں گے، خدا کی قسم یہ ناممکن ہے گورنمنٹ کے لیے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تاجر بہت پیچھے جا چکے ہیں، اب یہ جو 6 بجے کا 8 بجے کا ٹائم کرنا یہ تو ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ تفریحی سرگرمیاں بھی نئی پابندیوں کی لپیٹ میں آ گئیں۔ شہریوں کے بھی حکومتی فیصلے پر تحفظات سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بہت برا ہوا، یہ جو اثر پڑا ہے نا بچوں کے اوپر پڑھائی کا، یہ تو زیادہ ہی ستیہ ناش ہو رہا ہے نا آگے کی نسل کا۔ ضرورت بھی ہے جس طرح کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو اگر دوسری سائیڈ دیکھی جائے تو ہر طرف ہر طرف مکس ہوئے پڑے ہیں لوگ، لیکن صرف سکولوں پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ حکومت فیل ہے، اسی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اگر حکومت کامیاب ہوئے تو یہ لاک ڈاؤن نہ ہوئے۔ تاجر تنظیموں نے ہفتے کو ہنگامی اجلاس بلا لیے۔ حکومتی فیصلے پر حتمی لائے عمل طے کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن پر لاہور کے 2 بڑوں کے بیانات میں تضاد۔ کمشنر لاہور رجسٹریشن کے بغیر ویکسینیشن کے حامی نکلے، ڈپٹی کمشنر نے رجسٹریشن کے بغیر ویکسینیشن رکوا دی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے معمر افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن اور ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن پر لاہور کے 2 بڑوں کے بیانات میں تضاد سامنے آ گیا۔ کمشنر لاہور کے مطابق شہری رجسٹریشن کے بغیر بھی ویکسینیشن سینٹر آ سکتے ہیں۔ پہلے تو تھا کہ جنہوں نے رابطہ کیا تھا 1166 پہ اور وہاں سے پھر ان کو میسیجز آئے، وہ لیمیٹڈ نمبر ہے، لیکن اب ہم نے جو ہے جو بھی یہاں پہ آتا ہے اس کے لیے یہ فیسیلیٹی جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے تکنیکی نقطہ اٹھایا کہ رجسٹریشن کے بعد پن کوڈ جاری ہوتا ہے، سیکنڈ ڈوز اور ڈیٹا تبھی مرتب ہوگا جب رجسٹریشن ہوگی۔ ڈیٹا مینٹین ہم پالیسی کو فالو کر رہے ہیں جو NCOC کی پالیسی ہے، اور جو ہیلتھ منسٹری نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے ہم ایگزیکٹلی اس سے SOPs کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا بھی ضروری ہے CNIC کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پن کوڈ ایک جنریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیٹا ویریفائبل ہونا چاہیے، کیونکہ کل انہیں دوسری ڈوز بھی لگوانی ہے، ورنہ ڈیٹا ہم ویریفائی نہیں کر سکیں گے کس نے دوسری ڈوز لگوائی ہے کس نے نہیں لگوائی، تو دیر از اے پروسیس۔ کمشنر لاہور اور DC لاہور کی کنفیوژن اپنی جگہ، تاہم ویکسینیشن کے لیے آنے والے بزرگ شہری انتظامات سے مطمئن نظر آئے۔ لیک سٹی میں مزیدار پاکستانی کھانوں کی مہک، دیسی خوابوں کے شوقین افراد کے لیے وازوان ریسٹورنٹ کھل گیا ہے۔
ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की सरबराही में चेयरमैन लेक सिटी जावेद इकबाल ने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। बारबेक्यू कढ़ाई और टकाटक के मजेदार पकवान सबको भा गए। लेक सिटी में मजेदार पाकिस्तानी खानों की महक, देसी खाबों के शौकीन अफराद के लिए वाजवान रेस्टोरेंट खुल गया। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की सरबराही में चेयरमैन लेक सिटी जावेद इकबाल ने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। लेक सिटी में पहली बार देसी खानों की भरपूर वैरायटी एक छत तले फराहम की गई है। बारबेक्यू, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, कबाब की महक शहरियों को अपनी जानिब मतवज्जे करती है, तो मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई के साथ टका का भी जवाब नहीं। रेस्टोरेंट के ओपन एयर पुरसकून माहौल में फैमिलीज ने मजेदार खानों का लुत्फ उठाया। वाइस चेयरमैन एलडीए शेख मोहम्मद इमरान ने खानों के मयार की तारीफ की। यहाँ पे हर किस्म के खाने आपको मिल रहे हैं, चाइनीज़ भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, पाकिस्तानी भी है, स्ट्रीट रेस्टोरेंट भी है आपके। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल बन गया और ऐसे माहौलों की ज़रूरत भी है शाम को अच्छी जगह बाहर बैठने के लिए खुली हवा में। इफ्तिताही तकरीब में सुल्तान गौहर, वाइस चांसलर यूएमटी यूनिवर्सिटी इब्राहिम हसन मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद भी शरीक थे। वाजवान के खाने शहरियों के मन को खूब भाए। हम लोग यहाँ आए हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना यहाँ पर हमने खाया है। स्टाफ बहुत अच्छा था, इनका फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके तमाम जो जितने भी खाने थे, जैसे जो मटन की डिशेस थी, जो चिकन की डिशेस थी, बहुत बढ़िया थी। पाकिस्तानी जो कुजीन का पहला आउटलेट खुला है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अब अंदरूने शहर जो है वो बैरूने शहर रहेगा। मज़ेदार खानों के बाद तंदूरी चाय लुफ्त दुबाला कर देती है। खूबसूरत माहौल और बेहतरीन खाने। अगर आप भी पाकिस्तानी खाबों से लुत्फ अंदोज़ होना चाहते हैं तो लेक सिटी वाजवान पर आएँ और पाकिस्तानी खाबों से महजूज हो जाएँ। कैमरामैन वकार अली के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की तो सर्विस स्ट्रक्चर और अपग्रेडेशन का मुतालिबा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि धरना दिए बैठी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन औलक। हसनैन औलक, बताइएगा लेडी हेल्थ वर्कर्स के क्या मुतालिबात हैं? आज ही पंजाब भर से लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से लाहौर में जो धरना है वो जारी है और उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि सैलरी अपग्रेडेशन और इसके अलावा जो पे स्केल है उसमें अपग्रेडेशन की जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि 2018 में जो सैलरी अपग्रेडेशन की जानिब के हवाले से जो उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके ऊपर अभी अमल दरामद नहीं किया गया। तो उस सिलसिले में जो रहनुमा हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी सुपरवाइजर्स रुखसाना अनवर वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी ही वो लौटी हैं सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब के साथ मीटिंग करके वापस लौटे हैं। तो उनसे जानते हैं कि ऊंट किस करवट बैठा है और क्या उनके मुतालबात मान लिए गए हैं या नहीं। मैम क्या कहेंगे इस बारे से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबात हमारे वही हैं कि जो 2019 में राजा बशारत की सरबराही में वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी बनाई थी जिसमें स्केल्स मेंशन किए गए थे कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को बेसिक स्किल 7 दिया जाएगा, ड्राइवर्स को 6 दिया जाएगा, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र और अकाउंट सुपरवाइज़र को 14 दिया जाएगा और एफपीओस को 18 दिया जाएगा। उस पर अभी तक 2.5 साल हो गए, अमल दरामद नहीं हुआ। इस मीटिंग में क्या अमल दरामद हुआ है? इस मीटिंग में हमने अपने वही मुतालबात रखे हैं। तो हमें कहा गया है कि कुछ जो है वो एक एग्रीमेंट लिख कर वो देंगे हमें, लेकिन उस एग्रीमेंट की जो तहरीर है उससे हम मुत्तफिक नहीं हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वाज़े अंदाज में हमारे स्केल्स मेंशन किए जाएं। जी बिल्कुल, आपने सुना रुखसाना अनवर का ये कहना है कि जो सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब के साथ मीटिंग हुई है उसमें वाज़े तौर पर उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया और उनको ये यकीन दहानी नहीं कराई गई कि जो उनके मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि उनकी जानिब से एक उनको एफिडेविट दिया जा रहा है जिसके ऊपर ये कराई जाए, उनकी जानिब से कोई कराई गई। बहुत शुक्रिया हसनैन औलक हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ख्वाजा सहराओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आ गई है। कारोबार के लिए पैसा भी मिलेगा और ट्रेनिंग भी। हुकूमत पंजाब ने ख्वाजा ज़राओं की बहबूद और कौमी दहाड़े में शिरकत के लिए अहम कदम उठाया है। ख्वाजा सराओं को माशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए पंजाब स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री के ताउन से मुख्तलिफ कारोबारी शोबों में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के तहत ख्वाजा सराओं से उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री को ख्वाजा सराओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की हिदायत कर दी है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें छोटे पैमाने पर कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किए जा सकेंगे। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कर्ज बगैर किसी जमानत के दिया जा सकेगा। पंजाब स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री ख्वाजा सरा
तंजीमों के जरिए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। पंजाब स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री के ताउन से ख्वाजा सराओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई, हेयर सैलून वगैरह की तरबियत दी जाएगी। और अब गाड़ी और मोटरसाइकिल मालिकान के लिए अच्छी खबर ये है कि अगले हफ्ते से रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ी मालिकान को 500 नंबर प्लेट्स की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। 29 मार्च को 20,000 रोजाना प्लेट्स की फराहमी का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। नंबर प्लेट्स के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक अगले हफ्ते से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। मुतल्लिका कंपनी आरजी बुनियादों पर 500 नंबर प्लेट्स योमिया फराहम करेगी, जबकि 29 मार्च से रोजाना 20,000 नंबर प्लेट्स की फराहमी शुरू की जाएगी। एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी के मुताबिक पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नंबर प्लेट्स फौरी जारी होंगी, जबकि ज़ेरे इल्तवा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स का प्लान भी तैयार है, जिसमें पहले गाड़ियों की प्लेट्स जारी होंगी, जबकि उसके बाद मोटरसाइकिलों की प्लेट्स का इजरा होगा। शहरियों को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ज़ेरे इल्तवा नंबर प्लेट्स NRTC दफातर से मिलेंगी, जबकि नई रजिस्टर्ड गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जहां रजिस्टर होंगी उन्हें प्लेट्स मुतल्लिका दफ्तर से मिलेंगी, जबकि स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स एक साथ फराहम की जाएंगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रवां साल नंबर प्लेट्स का बहरान हल कर लिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में 25 लाख नंबर प्लेट्स ज़ेरे इल्तवा 2018 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नंबर प्लेट ताखीर का शिकार हुई। लाहौर समेत सूबे भर में पतंगबाजी करने वालों को कड़ी सजाएं देने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजी की सजाएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पतंग उड़ाने वाले को 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 1 साल की सजा होगी। पतंग बनाने वाले को 20 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल सजा देने का फैसला किया गया है, जबकि पतंग फरोख्त करने वाले को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल सजा होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने पतंगबाजी पर सजाओं में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि महकमे दाखिला ने कानून में तरमीम करने के लिए एक्ट महकमे कानून को अरसाल कर दिया है। पंजाब में आला अफसरान को दिए गए मुख्तलिफ अलाउंसेज में 2 अरब 12 करोड़ रुपए की माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने महकमे खजाना पंजाब के नाम पर ऑडिट पैरा बना दिया। ऑडिटर जनरल की जानिब से पंजाब असम्बली में पेश की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि माली साल 2018-19 और 2019-20 में वफाक से पंजाब में आए अफसरान को मुख्तलिफ अलाउंसेस से नवाजा गया। कवानीन और फेडरल सर्विसेज के रूल्स को बलाए ताक रखकर अलाउंस दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमे खजाना पंजाब ने अफसरान को एग्जेक्टिव अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस और एडिशनल फ्लाइंग अलाउंस दिए जो के गैर कानूनी थे। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महकमे खजाना का 2 अरब के अलाउंस में माली बेजाब्तगी पर दिया गया जवाब काबिले कबूल नहीं। दूसरी जानिब महकमे खजाना के हुक्काम का कहना है कि अफसरान को अलाउंसेस आला अथॉरिटीज की मंजूरी के बाद दिया गया था, जिसमें कोई बेजाबी नहीं हुई। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जाती उमरा अराजी केस। नैब लाहौर ने जाती उमरा के लिए अराजी खरीदो फरोख्त करने वाले तमाम अफराद को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक अराजी फरोख्त करने वाले मालकान, प्रॉपर्टी डीलर्स और रेवेन्यू स्टाफ को तलब किया गया है। रायवन में वाक़े मौजा सुल्तान के मौजा माल, मौजा असल लिखवाल, मौजा बदूकी सानी का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर रायवन ने तमाम मौजाजात का रेवेन्यू रिकॉर्ड नैब लाहौर को फराहम कर दिया है। नैब ने अराजी फरोख्त करने वाले अफराद को अदायगी की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। रिकॉर्ड मुकम्मल होने के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज शरीफ की जल्द तलबी के इम्कानात हैं। मजदूरों की कम अज़ कम उजरत के कानून पर अमल दरामद के लिए उजरत की अदायगी बजरिया बैंक करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने या न होने के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी साद सलीम की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जस्टिस शाहिद करीम बने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि मजदूर हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करें? इस मुल्क में तो 80% लोग टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आप इस दरख्वास्त में कैसे मुतासिरा फरीक हैं। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, ये मफादे आमा का केस है। हुकूमत ने मजदूर की कम अज़ कम उजरत मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत हर साल मजदूर की कम अज़ कम उजरत का तयन करती है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मजदूरों की उजरत के लिए कानून तो मौजूद है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लेबर डिपार्टमेंट इस कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा। जो लोग घरों में काम करते हैं उनको भी कम अज़ कम उजरत के हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं दी जाती। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की ऑरेंज ट्रेन डिपू डेरा गुजरा आमद हुई। चीनी सफ़ीर ने पहली बार लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का सफ़र किया और मुख्तलिफ शोबाजात का जायज़ा लिया। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने डेरा गुजरा डिपू का दौरा किया। ऑरेंज ट्रेन ऑपरेशनल होने के बाद किसी भी चीनी सफ़ीर का ये पहला दौरा है।
नोरेनको इंटरनेशनल की सीनियर मैनेजमेंट टीम ने चीनी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। डेरा गुजरा डिपो आमद पर चीनी सफ़ीर को फूल पेश किए गए। इस मौके पर चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने मनसूबे के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। चीनी सफ़ीर ने मेट्रो ट्रेन के पाकिस्तानी ड्राइवर से मुलाकात की, मैनेजमेंट से ब्रीफिंग भी ली और ट्रेन का सफ़र भी किया। चीनी सफ़ीर ने मनसूबे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। नोरेनको इंटरनेशनल के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ली चेन ने चीनी सफ़ीर को मनसूबे के बारे तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट पाक चीन देरीना दोस्ती की अलामत है। और अब शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों, दौरों और इजलासों का अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने मुख्तलिफ निजी डेयरी फार्म्स और वेटरनरी अस्पतालों का दौरा किया। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने बरकी और गवाला कॉलोनी में फार्मर्स से मुलाकात भी की। उनका कहना था कि मवेशियों की बेहतरीन परवरिश के लिए हुकूमत वसाइल मुहैया कर रही है। सरकारी स्कूल्स में जारी तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का इजलास हुआ, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिल्डिंग्स और CEO एजुकेशन लाहौर ने शिरकत की। DEOs ने स्कूल्स में जारी तामीराती प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अफसरान ने स्कूल्स में जारी डेवलपमेंट स्कीम्स को बर वक्त मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। DGLDA अहमद अजीज तारड़ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 23 नए कारोबार शुरू करने की इजाजत दे दी गई। नए कारोबारों में रिहायशी इलाकों में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कयाम और इंडस्ट्रियल इलाकों में रेस्टोरेंट्स का कयाम शामिल है। LWMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल, DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने शिरकत की। हरफा करीम टावर के करीब आरजी कलेक्शन, सफाई के निजाम में बेहतरी लाने और शहरियों की सहूलत के लिए 5000 से ज्यादा कंटेनर्स की मंजूरी दी गई। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं। लाहौर पुलिस आपकी मुहाफिज, आपकी दोस्त। पुलिस का नए नारे के साथ जश्न बहारा फेस्टिवल के तहत मॉल रोड पर मार्च। घुड़सवार दस्ते समेत पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट मार्च में शरीक हुए। जश्न बहारा के रंग लाहौर पुलिस के संग CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की क़यादत में मस्जिद शोहदा से गवर्नर हाउस तक अमन मार्च किया गया। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी, CTO सैयद हमाद आबिद, डिविजनल SP समेत डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट, वार्डन्स और घोड़सवार दस्ता भी मार्च का हिस्सा था। पुलिस बैंड ने खूबसूरत धुनें बखेर कर समा बांध दिया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि अमन हो या हंगामी सूरत हाल, लाहौर पुलिस के दिल अहले लाहौर के साथ धड़कते हैं। अवाम का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलिस जो है वो क्रिमिनल बदमाशों, गुंडों के लिए, चोरों डाकुओं के लिए बैड न्यूज़ है। हम उनको कहते हैं दफ़ा हो जो लाहौर से, निकल जाए इधर से। और जो अच्छे शरीफ शहरी जो जनरली हमारी पब्लिक है, उनकी सर्विस के लिए मददगार भी है, मुहाफिज भी है, दोस्त भी है उनकी। और ये मैसेज है कि पुलिस अवाम की दोस्त है, अवाम की मुहाफिज है। लाहौर पुलिस के मार्च पर शहरियों ने खुशगवार तासुरात का इजहार किया। बड़ा अच्छा लगा देखकर, और लोगों का आप दिलचस्पी भी देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए मुल्क में। बड़ी खुशी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि पंजाब पुलिस जो ऐसा काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। पुलिस मार्च में शरीक एक घोड़ा बुदक गया और अपने सवार को नीचे गिरा दिया, जिससे एहलकार को मामूली चोटें आईं। पुलिस परेड से जहां जश्न बहारा के रंगों में इजाफा हुआ, वहीं पर अवाम में भी तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। पुलिस परेड माल रोड से होती हुई क्लब चौक पे आके एहतमाम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। शहर में खेलों की सरगर्मियों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में। आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स T20 टूर्नामेंट में HS सीनियर्स ने लाहौर ग्रीन्स को 94 रन से शिकस्त दे दी। HS सीनियर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 196 रन बनाए। अयूब इनायत और मोहम्मद इलियास ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में लाहौर ग्रीन्स की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 102 रन बना सकी। 9 विकेटों के नुकसान पर 102 रन बना सकी। कराची एयरपोर्ट की टीम ने सिविल एविएशन के तहत पाकिस्तान डे कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट ने पहले खेलते हुए 184 रन बनाए। कराची एयरपोर्ट की टीम ने फैसलाबाद एयरपोर्ट ने पहले खेलते हुए 184 रन बनाए। कराची एयरपोर्ट की टीम ने हदफ 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद जैद ने 75 और वजाहत काजमी ने 47 रन की इनिंग्स खेली। मॉडल टाउन कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में तौसीफ क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद फारान जिमखाना को शिकस्त दे दी। तौसीफ क्लब ने फारान जिमखाना को जीत के लिए 250 रन का हदफ दिया। आकिब और हुसैन ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। हदफ के ताकुब में फारान जिमखाना की टीम 234 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद जिशान के 98 रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। तौसीफ क्रिकेट ट्रॉफी लीग के 5वें मैच में लुधियाना जिमखाना ने अपोलो स्पोर्ट्स को बड़े मार्जिन से हरा दिया। लुधियाना जिमखाना ने मुकर्ररा 40 ओवर में 296 रन बनाए। उमर सिद्दीक ने 21 चौकों की मदद से 121 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अपोलो स्पोर्ट्स की टीम हदफ के ताकुब में 173 रन बना सकी। इस मैच के बाद लुधियाना जिमखाना को 17 और अपोलो स्पोर्ट्स को 6 पॉइंट्स मिले हैं।
ابھی آپ کو بتائیں سید حجویری فاؤنڈیشن کی جانب سے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرز پر آذان دینے کا مقابلہ منعقد کروایا گیا۔ تقریب میں سینئر بیوروکریٹ طارق محمود، ڈی جی اوقاف سید طاہر رضا بخاری، خطیب داتا صاحب رمضان سیالوی، الخیر گروپ کے سی ای او شیخ محمد سعید، شیخ احمد سعید، سماجی شخصیت شاہد قادر، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار خالد سندھو اور مینیجر داتا دربار نے شرکت کی۔ معروف نعت خواں حافظ محمد وسیم نے ہدیہ عنایت پیش کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معروف مصور خالد خان نے معاشرتی رویوں کو کینوس پر اتارا، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرسکون اور مضطرب چہرے، خوشی میں دھمال کا انداز اور غصے میں غم کا اظہار۔ معروف مصور خالد خان نے انسانی رویوں اور چہروں کی کیفیت کو کینوس پر اتار دیا۔ خالد خان کے مطابق کسی بھی انسان کے رویے کا اظہار سب سے پہلے چہرے سے ہوتا ہے، چہرے کی کیفیت سب عیاں کر دیتی ہے۔ یہ کریکٹرز ہے، یہ جو جس طرح سے یہ موو کرتے ہیں، جس طرح سے یہ کپڑے پہنتے ہیں، جس طرح کی سراؤنڈنگز میں ہوتے ہیں، وہ ایک عجیب سی فیل دیتا ہے آپ کو اور وہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی تھی۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کلرز، یہ موومنٹ، یہ لائٹس کا چینجنگ، یہ چینج ہوتی ہیں لائٹیں، ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے اس کو کوشش کی کہ اس کو پینٹ کیا جائے۔ تو ڈانس کا بھی یہ کہ اس میں آپ دیکھیں کہ پرٹیکولر کوئی ایسا کوئی ٹیکنیکل ڈائیگرامک قسم کی پینٹنگ نہیں کہ پراپر فنگرز، ایک موومنٹ ہے، ایک فلو ہے، اس کو دکھانے کی کوشش کی، ایک موڈ جسے کہتے ہیں۔ تو شرکا کا کہنا تھا کہ آرٹ کے طلباء خالد خان کے فن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جنہوں نے کام دیکھنا ہے، آرٹ ورک دیکھنا ہے یا آرٹ ورک سیکھنا ہے تو وہ خالد صاحب کا کام دیکھے۔ اس دفعہ جو وہ چیز مجھے سب سے زیادہ جو اٹریکٹ کری تھی وہ ان کی جو کلر اسکیم، جو انہوں نے برائٹ کلر یوز کیے ہیں، ان کے اسٹروکس وغیرہ، اور وہ تو امیزنگ۔ انسانی جذبات کی عکاسی آسان کام نہیں، لیکن خالد خان اس فن میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ صوفیزم اور انسانی رویوں کی عکاسی کرتے مصوری کے یہ فن پارے 20 مارچ تک اعجاز آرٹ گیلری میں دعوت نظارہ دیتے رہیں گے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔